Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kalo Nasteva, Nasteva, Nasteva Gatiranyata. ठीक है। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आज के इस मॉर्निंग भागवतम में सभी का स्वागत है। तो पहली बात तो जो प्रभु जी ने जो भी कहा उसके लिए उसे भूल जाइए क्योंकि ये प्रभु जी का क्वालिटी है कि वो किसी रास्ते पे रेंगते हुए कीड़े को भी 10 गुण गिना दे। तो ये प्रभु जी का गुण है। Yes, so let us start with our Srimad Bhagavatam class. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhaktirottama Shloke Bhaktirbhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaaya Cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namaha Nama Pankajanabhaya Namo Pankajamalini Nama Pankajanetraya Namaste Pankajangraye। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 27th चैप्टर 21वां श्लोक। श्री भगवान उवाच अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण अमलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुत संवृतया चिरम्। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The Supreme Personality of Godhead said, "One can get liberation by seriously discharging devotional service unto me, and thereby hearing for a long time about me or from me. By thus executing one's prescribed duties, there will be no reaction, and one will be freed from contamination of matter." Purport. Sridhar Swami comments in this connection that by association with material nature alone, one does not become conditioned. Conditional life begins only after one is infected by the modes of material nature. If someone is in contact with the police department, that does not mean that he is a criminal. As long as one does not commit criminal acts, even though there is a police department, he is not punished. Similarly, the liberated soul is not affected, although he is in the material nature. Even the Supreme Personality of Godhead is supposed to be in association with material nature when he descends, but he is not affected. One has to act in such a way that, in spite of being in the material nature, he is not affected by contamination. Although the lotus flower is in association with water, it does not mix with water. That is how one has to live, as described here by Personality of Godhead Kapil Dev. Animitta nimittena swadharmena amalatmana. One can get liberated from all adverse circumstances simply by seriously engaging in devotional service. How this devotional service develops and becomes mature is explained here. In the beginning, one has to perform his prescribed duties with a clean mind. Clean consciousness means Krishna consciousness. One has to perform his prescribed duties in Krishna consciousness. There is no necessity of changing one's prescribed duty. One simply has to act in Krishna consciousness. In discharging Krishna conscious duties, one should determine whether he is professional or occupational duties. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is satisfied. In another place in Bhagavatam, it is stated, Swa anushtitasya dharmasya samsiddhir haritoshanam. Everyone has some prescribed duties to perform, but the perfection of such duties will be reached only if the Supreme Personality of Godhead, Hari, is satisfied by such actions.
For example, Arjuna's prescribed duty was to fight, and the perfection of his fighting was tested by the satisfaction of Krishna. Krishna wanted him to fight, and when he fought for the satisfaction of the Lord, that was the perfection of his professional devotional duty. On the other hand, when contrary to wish of Krishna, he was not willing to fight, that was imperfect. If one wants to perfect his life, he should discharge his prescribed duties for the satisfaction of Krishna. One must act in Krishna consciousness, for such action will never produce any reaction. Animitta nimittena. That is also confirmed in Bhagavad Gita. Yajnarthartho karmano anyatra. All activities should be performed simply for yajna or for the satisfaction of Vishnu. Anything done otherwise without the satisfaction of Vishnu or yajna produces bondage. So here it is also prescribed by Kapil Muni that one can transcend material entanglement by acting in Krishna consciousness, which means seriously engaging in devotional service. This serious devotional service can develop by hearing for a long period of time. Chanting and hearing is the beginning of the process of devotional service. One should associate with devotees and hear from them about the Lord's transcendental appearance, activities, disappearance, instruction, etc. There are two kinds of Shruti or scriptures. One is spoken by the Lord, and the other is spoken about the Lord and his devotees. Bhagavad Gita is the former and Srimad Bhagavatam is the latter. One must hear these scriptures repeatedly from reliable sources in order to become fixed in serious devotional service. Through engagement in such devotional service, one becomes freed from the contamination of Maya. It is stated in Srimad Bhagavatam that hearing about the Supreme Personality of Godhead cleanses the heart of all contamination caused by the influence of three modes of material nature. By continuous regular hearing, the effects of contamination of lust and greed to enjoy or lord it over material nature diminish. And when lust and greed diminish, one then becomes situated in the mode of goodness. This is the stage of Brahman realization or spiritual realization. In this way, one becomes fixed on the transcendental platform. Remaining fixed on the transcendental platform is liberation from material entanglement. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं तीसरे स्कंद के 37वें श्लोक का 37वें अध्याय का 21वां श्लोक। तो प्रसंग ऐसा है कि भगवान कपिल मुनि माता देवहूति को प्रकृति के बारे में बता रहे हैं और इस दौरान देवहूति का पहला प्रश्न पूछती हैं और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आज का ये श्लोक है। तो इसे समझने से पहले हम जो देवहूति का प्रश्न था उसको थोड़ा दोहराते हैं। तो देवहूति का प्रश्न था कि प्रकृति जो कि भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है और जो आत्मा जो मार्जिनल पोटेंसी है, क्या ये दोनों को कभी अलग किया जा सकता है या आत्मा आत्मा प्रकृति के 3 गुणों से बंधन से मुक्त हो सकता है? क्योंकि आत्मा और शरीर को एक दूसरे से हम अलग नहीं देख सकते। प्रभुपाद अपने प्रपट में बताते हैं कि आत्मा शरीर के बिना दिखता नहीं है और शरीर जो है वो आत्मा के बिना उसका अस्तित्व नहीं है। और आत्मा और प्रकृति को
कैसे बंधे हुए हैं इसका एग्जाम्पल देवहूति अपने क्वेश्चन में ही बताते हैं कि जैसे कि धरती और उसका जो सुगंध है वो अलग नहीं किया जा सकता, जैसे पानी और उसका टेस्ट उसे अलग नहीं किया जा सकता, जैसे बुद्धि और चेतना इसे अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से अ, जो प्रकृति और आत्मा जो है वो ऐसे बंधे हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में मुक्ति इन बंधन से, प्रकृति के बंधन से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? ये प्रश्न देवहूति कपिल भगवान से पूछती है। तो इसका उत्तर देते हुए कपिल मुनि आज के श्लोक में बताते हैं कि मुक्ति संभव कैसे है? और इसका सरल उत्तर अगर हम एक शब्द में बताएं तो उसका ये संभव है भक्ति से। तो इसमें 3 चीज़ें कपिल मुनि यहाँ पे बताते हैं। एक है सीरियसली डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस, हियरिंग अबाउट लॉर्ड और फ्रॉम लॉर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड एग्जीक्यूटिंग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। शॉर्ट आंसर है भक्ति करना। और इनमें 3 पॉइंट्स बताए हैं कि इसको गंभीरता से करना चाहिए और भगवान के बारे में और भगवान से सुनना चाहिए और हमारे जो कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए। और इन्हीं 3 चीज़ों को इन तीज चीज़ें करने से हम 3 गुणों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इन्हीं 3 विषयों को अच्छे से एकदम सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और इसका जो क्रक्स है और इसमें एक एडवांटेज भी है कि हमें प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे हम अ, भक्ति में अग्रसर हो या फिर हम आगे बढ़े। तो हम एक-एक पैराग्राफ वाइज़ इसको एनालाइज़ करेंगे। एनालाइज़ करने की कोशिश की है मैंने। अ, तो फर्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रकृति कोई जीव जब प्रकृति के संपर्क में आता है, सिर्फ संपर्क में आने से वो बंधन में नहीं पड़ता है। जब वो ऐसे कोई कार्य करता है, तभी वो बंधन में पड़ता है, ही गेट्स कंडीशन्ड। जैसे कि प्रभुपाद यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देते हैं पुलिस डिपार्टमेंट का। अगर कोई व्यक्ति पुलिस डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जेल में है या फिर वो बंद गया है। जब तक कि वो कोई ऐसा इलीगल एक्टिविटी नहीं करता, कोई क्रिमिनल काम नहीं करता है, तब तक वो जेल में नहीं रहेगा, वो पुलिस में बनता नहीं है। तो उसी प्रकार से जब कोई आत्मा या कोई जीव ऐसे कार्य करता है जिससे वो इस भौतिक जगत में 3 गुणों के अधीन होता है, तब तक वह बनता नहीं है। और यहाँ पे प्रभुपाद 2 एग्ज़ाम्पल देते हैं भगवान और लिबरेटेड सोल्स का। भगवान भिन्न-भिन्न अवतार लेते हैं और इस प्रकृति में आते हैं हमारे उद्धार के लिए। तो वह इस प्रकृति के 3 गुणों के अधीन नहीं होते हैं। ही डज़न्ट गेट बाउंड बाय द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। उसी प्रकार से लिबरेटेड सोल जैसे कि हमारे आचार्य हुए, स्वयं प्रभुपाद हो गए, तो वो इन 3 गुणों के अधीन नहीं आते हैं। वो मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर से बनते नहीं हैं। और यहाँ पे एक लोटस फ्लावर का भी एग्ज़ाम्पल दिया गया है, जैसे कि कमल जो है वो पानी में खिलता है, वो पानी में ही रहता है, लेकिन वो पानी से घुलता नहीं है, पानी में मिक्स नहीं होता है। तो अगर इस पैराग्राफ को हम कंसाइज़ली बताएँ, एक सेंटेंस में बता सकते हैं, तो प्रभुपाद बोलना चाहते हैं कि बीइंग इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम ऐसे अगर जीवन हमें ऐसे जीवन जीना चाहिए जहाँ ऐसे हम कार्य करना चाहिए जो हमें 3 गुणों से बांधता नहीं है। तो भगवद गीता में 3 प्रकार के कर्म या कार्य बताए गए हैं और ये है कर्म, आप सभी जानते होंगे कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म वे हैं जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ होते हैं, शास्त्र अनुगत होते हैं और जो करने से पुण्य इकट्ठा होते हैं। और विकर्म ये ऐसे कार्य हैं जो शास्त्र के विरुद्ध होते हैं, पापाचरण करने से
पापाचरण जो होता है, उससे हम पाप इकट्ठा करते हैं। और अकर्म ये ऐसे कर्म हैं जो शास्त्र अनुगत्य होते हैं, लेकिन इन्हें करने से हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलता है और हम प्रकृति से के 3 गुणों से बनते नहीं हैं। और इस यही जो अकर्म है, इसको ही प्रभुपाद आगे के 2 पैराग्राफ में बहुत ही सुंदर तरीके से हमें समझाते हैं। जो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ है, वो है, अगर हम एक सेंटेंस में बोले तो दैट इज़ एन एक्शन इन कृष्णा कॉन्शसनेस। सो यदि हम 3 गुणों से मुक्त होना है, तो हमें बहुत ही गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए। प्रभुपाद फर्स्ट सेंटेंस वो बताते हैं कि वी शुड डू वेरी सीरियस डिवोशनल सर्विस। बाय सीरियसली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस हम 3 गुणों से मुक्त हो सकते हैं। तो हम सभी जैसे कि प्रभुपाद यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि वी शुड स्टार्ट विथ performing performing our prescribed duties in Krishna consciousness। जैसे कि हम कोई ना कोई धर्म का पालन कर रहे हैं। कोई पुत्र धर्म का पालन कर रहा है, पति 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 धर्म कोई पालन कर रहा है, पत्नी धर्म कर रहा है, कोई माता-पिता का धर्म का पालन कर रहा है। तो ऐसे अ, जब हम यानी ऐसे धर्मों का पालन कर रहे हैं, तो ऐसे हो सकता है कि हम अगर इन्हें अ, अगर हम इन्हें अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, तो ये हमें इस मटेरियल नेचर से मटेरियल की 3 गुणों से बांध सकता है। तो हमें एक्चुअल में यहाँ पे कार्य को या जो हमारे धर्म है उसको बदलना नहीं है, बल्कि हमारी सिर्फ चेतना या फिर कॉन्शसनेस है, इसको बदलना है। ये कॉन्शसनेस क्या जो शिफ्ट है वो कैसे होना चाहिए कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ या फिर जो भी मैं धर्म निभा रहा हूँ, वह सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए है। और हमारे ये धर्म की परिपूर्णता या फिर परफेक्शन ऑफ दिस धर्म होता है ओनली व्हेन वी डू इट फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ द लॉर्ड। यहाँ पे प्रभुपाद ने श्लोक का वर्णन किया है, स्व अनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। तो ये जो भी धर्म का पालन कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसका परफेक्शन तभी आता है जब हम उसे भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं। यहाँ पे अर्जुन का भी उल्लेख किया गया है कि वह एक क्षत्रिय था और उसका धर्म था कि वो लड़े, और लेकिन उसका जो लड़ना है वो उसे वो उसे बंधन में प्रकृति के बंधन से बांध सकता था। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण की संतुष्टि के लिए महाभारत के युद्ध में लड़ाई की, तो उसके धर्म का परफेक्शन जो कि उसका धर्म था लड़ना, तो उसका परफेक्शन वो तभी हुआ जब उन्होंने कृष्णा की संतुष्टि के लिए महाभारत के युद्ध में लड़ाई की। तो जो भी हम कार्य करते हैं, वह भगवान की संतुष्टि के लिए होनी चाहिए और भगवान को केंद्र में रख के करना चाहिए। जैसे कि ईशोपनिषद में उल्लेख है, प्रभुपाद लिखते हैं कि लिविंग अ गॉड सेंटर्ड लाइफ ईशावास्यम इदम सर्वम। तो उस प्रिंसिपल से अगर हम जीते हैं, तो हम हम प्रकृति के इस 3 गुणों से बंधेंगे नहीं। जैसे अगर हम डे टू डे एग्जांपल लाइफ में एग्जांपल ले, अगर कोई ऑफिस में काम कर रहा है, तो अगर एक आम जिंदगी में मतलब आम जो लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, तो उनका जो कॉन्शियसनेस रहता है कि मैं काम करूंगा, मुझे सैलरी मिलेगा और सैलरी से जो लक्ष्मी आएगी उससे मैं एंजॉय करूंगा, कार खरीदूंगा या पार्टी जाऊंगा, मूवी देखूंगा। तो इन चीजों को करने से वह प्रकृति के मोड़ से तीन गुणों से बंध सकता है। लेकिन वही सेम एक्टिविटी अगर कोई डिवोटी करता है, तो उसकी चेतना होती है कि मैं जो कार्य जो मैं कर रहा हूँ, उस लक्ष्मी से लक्ष्मी से मैं अपने माता-पिता की सेवा करूँगा, या फिर जो पत्नी है, बच्चे हैं, उनका पालन-पोषण करूँगा, जो कि भगवान के स्वयं बच्चे हैं, तो मंदिर में दान करूँगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक चेंज इन कॉन्शियसनेस है, नॉट इन चेंज इन एक्टिविटी। अगर कोई कुकिंग कर रहा है घर पे, तो वहाँ पे भी
अगर जो नॉर्मल जो व्यक्ति है वो अपने एन्जॉयमेंट के बारे में सोचता है, लेकिन वही कार्य, वही एक्टिविटी जब हम भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं तो वो हमें वो भक्ति बन जाती है और हमें ब 3 गुण से बनते नहीं, प्रकृति से हम बनते नहीं हैं। और आगे भगवद गीता में बताते हैं कि जैसे यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कोई भी कार्य जब हम यज्ञ की तरह करते हैं, दैट इज एज अ सेक्रीफाइस फॉर विष्णु, तो वैसे कार्य करने से हम 3 गुणों से बनते नहीं हैं, बल्कि हम उससे और ऐसे कार्य करने से हम कर्म बंधन से बंधते नहीं हैं, बल्कि उससे मुक्त होते हैं। तो आगे इसके बाद प्रभुपाद डिवोशनल सर्विस के बारे में बताते हैं कि कैसे हम सीरियसली डिवोशनल सर्विस कर सकते हैं। ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, जैसे कि हम 24 आवर हियरिंग चैंटिंग नहीं कर सकते, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि बिगिन विथ परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में ही अगर मतलब जैसे कहा कि 24 आवर हियरिंग चैंटिंग नहीं कर सकते, लेकिन जो डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज हैं उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में वे से एक्ट करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति में गंभीरता कैसे आती है, उसके बारे में उल्लेख करते हैं। तो भक्ति में सीरियसनेस आती है हियरिंग चैंटिंग एंड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज से। इन 3 चीज़ों से हमें हम भक्ति में सीरियसनेस आती है। लेकिन इसे कैसे करना चाहिए, इसे भी प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बताया है। जैसे कि हियरिंग हो गया, तो हियरिंग में प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारे 2 तरह के ग्रंथ हैं। एक है जो भगवान के बारे में और भगवान और उनके भक्तों के बारे में बताता है, और दूसरा है जो भगवान स्वयं स्वयं उल्लेख करते हैं। वन इज अबाउट द लॉर्ड एंड हिज ड्यूटीज एंड अनदर इज फ्रॉम द लॉर्ड। और वो कौन से हैं? एक है श्रीमद् भागवतम और ये भगवद गीता। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में भगवान और उसके डिवोटीज के बारे में है, और भगवद गीता स्वयं भगवान कृष्ण ने बताया है। जो जब इन 2 ग्रंथों को हम जब श्रवण करते हैं, और ये कैसे करना है, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। एक है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दूसरा है रिपीटेडली, और तीसरा है राइट सोर्स। तो ऐसा देखा गया है कि जो भक्ति प्रोसेस है, तो स्टार्टिंग में बहुत ही उत्साह होता है। तो और यह उत्साह कुछ समय तक रहता है, और कुछ 5-6 साल बाद या फिर कुछ 10 साल बाद ये उत्साह घटते जाता है। तो ये भक्ति जो प्रोसेस है, ये कोई टी20 मैच नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा जल्दी। नहीं, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड समटाइम इट इज़ लाइफ टाइम्स प्रोसेस। तो एग्जाम्पल जैसे कि हो गया नारद मुनि का, जो उन्होंने नारद मुनि जब वो बचपन में ही भगवान का एक बार दर्शन हो गया, उसके बाद उन्हें भगवान मिले ही नहीं, लेकिन वह टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ वो कंटिन्यूअसली भगवान के भक्ति करते गए। दूसरा है एग्जाम्पल है शबरी जी का। शबरी जी उन्हें मातंग ऋषि के आश्रम में वह जब वो युवा अवस्था में आई थी, तो वो युवा अवस्था से लेके राम जी के लिए प्रतीक्षा वृद्ध अवस्था तक करते गए, और एवरी डे वो अपने आश्रम को ऐसे सजाते थे कि भगवान आ जाएंगे, यू नो। तो उसे ये एक एग्जाम्पल सेट करे, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि ये जो भक्ति प्रोसेस है वो एक दिन 1 साल 10 साल 20 साल की नहीं है, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और अगर हम कंटेम्परेरी एग्जांपल्स दे, तो प्रभुपाद एंड डिसाइपल्स, उनके डिसाइपल्स ने जो युवा में उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन अभी तक वो भक्ति हियरिंग चैंटिंग करते हैं। और जैसे कि एग्जांपल हो गया स्वयं जयप्रकाश स्वयं महाराज, राधनाथ स्वामी महाराज, गौर गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज। ये सब हम देखते हैं कि टिल फ्रॉम स्टार्ट ऑफ देयर लाइफ टू एंड ऑफ देयर लाइफ दे आर डूइंग कंटिन्यूअस हियरिंग चैंटिंग एंड सर्विस। और दूसरा पॉइंट है रिपीटेडली। तो ये हमारा अनुभव है कि जैसे हम कोई पास टाइम सुनते हैं या फिर कोई कथा सुनते हैं, अगर वो
रिपीट हो जाता है तो हमारा माइंड एक ऐसा एक मोड स्विच करता है कि हाँ, अच्छा अगर बोल दिया कि प्रहलाद महाराज, तो हमारे माइंड में वो रील चल जाता है कि हाँ, प्रहलाद महाराज, नरसिंह भगवान खंबा फोड़ दिया, ऑल दैट वो दिमाग में अपने आप घूम जाता है, तो हम वापस सुनने का जो तीव्रता है वो चली जाती है। तो लेकिन हम बोर हो जाते हैं तो और हम उसको अपना उसको लाइटली लेते हैं, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं वी शुड डू इट रिपीटेडली। हमें बार-बार सुनना चाहिए, हमें बार-बार दूसरी कथाओं को बार-बार सुनना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है राइट सोर्स, मतलब बोनाफाइड अ, बोनाफाइड एंड परंपरा अनुगत्य। तो एक एनालॉजी दिया गया है कि जैसे दूध होता है, वो बहुत ही पौष्टिक होता है। सिमिलरली जो हमारे जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, ये दूध के समान है, पौष्टिक है। लेकिन उसी दूध को अगर किसी सांप ने चख लिया या तो वो सेम दूध जो हमें हमारे शरीर को रुष्ट-पुष्ट बनाता था, वो एक पॉइज़न की तरह हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर हम राइट सोर्स से नहीं सुनते हैं, तो वो सेम श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता हमारे अंदर इंस्टेड ऑफ नर्चरिंग डिवोशनल सर्विस वो हमारे अंदर अवगुण ला सकता है। यस, तो और ये हो गया हियरिंग और चैंटिंग, और उसके बाद है एसोसिएशन विथ डिवोटीज। यहाँ पे प्रभुपाद इस एक लास्ट सेंटेंस में बता रहे हैं कि वी शुड one should associate with devotees and hear from them about Lord's transcendental appearance, activities, disappearance, instructions, etc. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें एसोसिएशन ऑफ ड्यूटीज का हमें मतलब लगता है कि दो ड्यूटीज फिजिकली कमिंग टुगेदर एंड टॉकिंग। लेकिन एसोसिएशन ऑफ ड्यूटीज तभी होता है हम अ, जब दो भक्त आते हैं और भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, ना कि जो भौतिक जगत में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स या फिर क्रिटिसिज्म या फिर स्पोर्ट्स। अगर ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन होता है तो वो एसोसिएशन नहीं है। तो हमें जब डिवोटीज के साथ हम जब आते हैं तो हमें एक दूसरे से पूछना चाहिए कि हम आज आपने इस हफ्ते आपने क्या प्रभुपाद के कौन सी किताब पढ़ी, या फिर आपको कौन-सा श्लोका आपने पढ़ा, आपने कौन-सा लेक्चर सुना, आपको क्या अच्छा लगा, आपकी रियलाइज़ेशंस क्या है? तो ऐसे जब हम एसोसिएशन करते हैं, तो हम भक्ति में सीरियस होते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो ये 10.9 में भगवान स्वयं बताते हैं कि मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जब भक्त साथ आते हैं तो वो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। सो ऐसी जब भक्ति हम ऐसे ऐसे जब हम भक्ति करते हैं तो हम हमारे सीरियसनेस बढ़ता है। आगे यस, सो आगे प्रभुपाद अपने परपट में लिखते हैं, ये जब सीरियस डिवोशनल सर्विस में हम अग्रसर होते हैं, तो हमारे अंदर ये जो अ, अवगुण रहते हैं, अनर्थास रहते हैं, वह धीरे-धीरे कम होने लगते हैं। काम और लोभ, लस्ट एंड ग्रीड यानी एन्जॉयमेंट प्रोपेंसिटी, जो कि कारण है इस भौतिक जगत से हमें बांधे रखना, वो कम होने लगता है। और जब ये लस्ट और ग्रीड जब कम होता है या फिर खत्म हो जाता है, तो हम प्रकृति के 3 गुणों के बंधन से मुक्त हो जाएँगे। So that is what Prabhupada stays in the last paragraph of his purport. So yes, thank you very much. Hare Krishna. सभी भक्तों का धन्यवाद ये सेवा का अवसर के लिए और पेशेंटली सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। और मैं माफ़ी माँगता हूँ अगर कोई मिस्टेक हुआ हो तो इस दौरान। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू, अमरीश प्रभु। वेरी नाइस क्लास, बहुत अच्छा लगा सुन के। और हाँ,
One thing was nice was हर पर्पट का जो था सार वो एक लाइन में देते जा रहे थे. It's really very nice. And we we hope हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसे ही आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहें, अपना संग देते रहें. थैंक यू प्रभु. क्विकली मैं भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ किसी का कोई प्रश्न. आई थिंक ऑलरेडी वेजी माता जी ने हाथ उठाया है. या वेजी माता जी. Hare Krishna, Prabhuji. Danvat Pranam. Very nice class. And मेरा first thing, आपका नाम देके I thought I'll associate it with the verse. Because Amrish Maharaj is a perfect example of performing, using all his senses and doing devotional service, which is the crux of आज का, verse का, how कैसे हम भक्ति कर सकते हैं. He's also a very good example. So आपका नाम immediately, got me to that, Prabhuji. And you did an excellent job of explaining each, जैसे प्रभुजी ने कहा, summary for each one of them, and each of the lines of the paragraphs of the purports have been explained very well. मुझे कुछ takeaways है which I thought I will share. When I was reading the verse, एक और भगवत गीता का verse that came to my mind. जैसे भगवान ने कहा 8.7 में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यत् पितमनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः. जैसे आपने कहा, we have to get to that stage of akarma, God centric, Krishna centric activities करना है and do the prescribed duties. So भगवान ने इस verse में वही, he's telling Arjuna, you should always think of me Krishna के रूप में, and your prescribed duty of fighting with your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without a doubt. जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी को भी कैसे करना है, भगवान ने यहाँ बताया है. एंड अपने यू ऑल्सो दो पॉइंट्स जो प्रभुपाद जी ने बताया अबाउट द एनालॉजीज, पुलिस डिपार्टमेंट का एंड वो लोटस का एनालॉजीज आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया प्रभु जी. मुझे फर्स्ट थिंग, वन इंग्लिश का एक कहावत है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. बट एक और भी है, अ मैन इज जज बाय द कंपनी ही कीप्स. तो हमें ये थोड़ा बैलेंस करना चाहिए. एंड जस्ट बिकॉज समबडी इज एसोसिएटेड विद द पुलिस डिपार्टमेंट, हमें ये कंक्लूजन नहीं होना चाहिए कि दैट वी आर कंप्लीटली माया के होल्ड पे है. And you gave a very good introduction also, because how is verse का, क्योंकि देवती माता ने प्रश्न पूछा, प्रकृति एंड आत्मा इतना intricately connected है and linked है, like earth and the smell of the earth, water and taste, then how can it be separated. आपने बहुत अच्छी तरह simple answer दिया, भक्ति and इसका three components भी, seriously discharging devotional service here from and about the Lord, and performing the prescribed duties is the way to liberate ourselves. Uh, First paragraph का summary वो बहुत अच्छा था, being in the world and not of the world. Second paragraph का हमें consciousness, and third paragraph हमें consciousness को change करना है, not a dharma or position. Because उसके लिए भी I think एक और verse है, 3.35 of Bhagavad Gita. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठिता स्वधर्म निधनं श्रेय परधर्म भयावहः. That is, we should not change our position or change our dharma. जो कुछ हमारा duties है, it is better that we do it even though it may be improperly in the initial stages. एंड प्रभु जी आपका ये लास्ट पॉइंट पैराग्राफ में 3 पॉइंट्स टेक अवे के लिए आपने बताया, ये भक्ति हम कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स. ये तो लॉन्ग पीरियड के लिए हमें करना चाहिए, रिपीटेडली करना चाहिए, एंड राइट सोर्स से हमें वी हैव टू डू इट. एंड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज का मीनिंग भी आपने बहुत अच्छी तरह बताया. इट्स नॉट जस्ट टू डिवोटीज कमिंग टुगेदर, बट भगवान के बारे में डिस्कस करने से ही वो एसोसिएशन एक्चुअली कम्स आउट. प्रभु जी मेरा एक एक क्वेश्चन था. इट इज आई थिंक इट्स सेकंड पैराग्राफ में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक सेकंड पैराग्राफ, नो फर्स्ट एक्चुअली सेकंड पैराग्राफ में थर्ड सेकंड लाइन में,
There are these two sentences. I'll just read the sentences and then I'll ask my question, Prabhuji. In the beginning, one has to perform his prescribed duties with a clean mind. क्लीन कॉन्शियसनेस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. ऑफ कोर्स ये समझ में आ रहा है बिकॉज प्रैक्टिकली भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जब आते समय डेफिनेटली दैट उत्साहन इज देयर एंड स्लोली उसको मेंटेन करना सस्टेन करना एक्चुअली बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. बट मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी की when we talk about clean mind and when we are actually entering a krishna consciousness and is is path mein हमारा माइंड तो इतना polluted है and because of association with maya and completely in materiality. uh, कैसे हम clean mind से we can do something because at least my understanding में initially it is completely polluted and impure although that utsahan is there. So I'm kind of trying to understand what Prabhupada ji is saying. In the beginning, one has to perform his prescribed duties with a clean mind. If you can share some thoughts on that, Prabhuji. Hare Krishna. Dandavat Pranam. हरे कृष्णा माता जी. एक्चुअली आपने जिस तरीके से समझा और जिस डेप्थ से समझा मैंने भी नहीं समझा था इतना. थैंक यू फॉर समराइजिंग इट वंडरफुली. With my limited knowledge, I'll try to answer this. I think then senior devotees can add into it. जैसे कि क्लीन माइंड, यस आपने सही कहा कि हमारा जो माइंड है इट इज पोल्यूटेड राइट नाउ. बट कैसे है, जैसे कि अगर हम एक ग्लास में मडी वाटर लेते हैं तो अगर हम कंटिन्यूअसली उसमें प्योर वाटर डालते जाते हैं तो वो जो एक एक ऐसा समय आता है कि जो मड है और जो पोल्यूशन है उसका वो बाहर निकल जाता है और ग्लास में सिर्फ क्लीन वाटर रह जाता है. तो उसी प्रकार से अगर हम कंटिन्यूअसली एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज करते हैं और कंटिन्यूअस हियरिंग चैंटिंग एंड रेगुलर चैंटिंग करते हैं तो ये जो हमारा जो माइंड में जो पोल्यूशन है वो निकल जाता है. तो इसका अगर हम दो शब्दों में कह सकते हैं तो डू इट कंटिन्यूअसली एंड इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. सो दैट आई वुड से, और बाकी भक्त ऐड कर सकते हैं. सॉरी. या Prabhuji, thank you, Prabhuji. That example of that water, that is very nice. So continuous association से slowly, our thoughts, our consciousness, जैसे आपने बताया, completely, change करने से and proper association से, possible to change that. Hare Krishna. Thank you. Yeah. थैंक यू Krishna. फॉर द क्वेश्चन. Thank you for nice question. Amrish, very nicely addressed. इसमें अगर हम लोग देखें तो यही है कि हम लोग भौतिक जगत में हैं और भौतिक जगत में से जब हम लोग कृष्ण भक्ति में या कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं तो नो डाउट हम लोग जो है इसमें पूरे भौतिकता से भरे हुए, हमारा कॉन्शियसनेस से पूरा जो है अनक्लीन है. लेकिन यहाँ पे जब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमको one has to perform his prescribed duties with a clean mind, that means one angle we can take is it doesn't have to be क्या बोलते हैं ना, मैकेनिकल थिंग. हम लोग जैसे बहुत से लोग जो हैं जस्ट मैकेनिकली, जैसे सुबह आरती करना है, सुबह उठ गए गड़गड़ गड़गड़ आरती घुमाया, भगवान को भोग लगाया, धड़ाधड़ मंत्र बोला, हो गए, मेरा काम हो गया. Not in that sense, but he should put his mind and be serious in his attempt to offer whatever it is, either it is arti or whether it is bhoga. So wo hona chahiye, and while he is doing that, his mind should be pure. He should not be thinking. It's not possible it will be 100% clean, but jo bhi process hai, there should be some not process, whatever thoughts he has. So he has to try to make an effort that he is trying to do it purely with his mind. Just one thing is external pureness and other is internal pureness. जो अंदर से प्योरिटी है माइंड का स्पेशली, that should be there. और जैसे अमरीश प्रभु ने बहुत अच्छे से बताया कि जब वो करते रहेंगे तो स्लोली स्लोली इट विल बिकम 100% क्लीन. So that is one angle just wanted to add. Hare Krishna.
Thank you, Prabhuji. Very nicely Thank you, explained. Thank Prabhu. you. Yes. या हरे कृष्णा। और कोई भक्त कुछ टीका टिप्पणी नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, तो विल स्टॉप हियर। एंड वंस अगेन अमरीश प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, संग देने के लिए। थैंक्स टू सूरत माधव प्रभु ऑल्सो फॉर कनेक्टिंग यू। और ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही आते रहिए। यस सूरत माधव प्रभु, हरे कृष्णा। नहीं नहीं प्रभु, वही है। थैंक यू वेरी मच गोपीनाथ प्रभु। आपकी वजह से मतलब हम लोगों को डेली भागवतम का ये मिलता है नेक्टर। एंड थैंक यू अमरीश प्रभु। इज वेरी हम्बल। वो पहले सोच रहे थे इतने सारे सीनियर डिओटी है, और मैंने बताया ऐसा कुछ नहीं, ऑल फैमिली। और एज अ फैमिली हम यहाँ पे कई स्टडी इज गोइंग ऑन, यहाँ पे कोई ऐसा पंडित कोई ऐसा है नहीं। तो आफ्टर दैट वो आए। एक्चुअली इनको वो सब ज्ञान है, लेकिन वो आउट ऑफ ह्यूमिलिटी वॉज थोड़ा। तो आपने कहा जैसे प्रभु रिक्वेस्ट करते हैं एटलीस्ट महीने में एक बार प्रभु जी ऐसे आते रहे, और वी कैन स्टडी टुगेदर एंड प्रैक्टिस भक्ति टुगेदर। एंड इट वाज वेरी नाइस क्लास। प्रभु जी ने बहुत अच्छा तरह से समझाया। थैंक यू सो मच अमरीश प्रभु, एंड थैंक यू गोपीनाथ प्रभु एंड ऑल डिवोटीज प्रेजेंट। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Thank you for the थैंक यू, opportunity. थैंक यू प्रभु। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ प्रभु, या डोंट थिंक यहाँ पे कोई ऐसे सीनियर भक्त लोग। मैं अपनी बात करूँ, मैं तो बिल्कुल ही जूनियर हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। सूरत माधव प्रभु, सर्वदेव गिरधारी प्रभु, ये लोग सब बहुत ही अच्छे, बहुत ही कुछ सीनियर डिवोटीज है। तो डोंट थिंक इट्स ए ग्रुप ऑफ सीनियर डिवोटीज। बस ऐसा सोचो कि जैसे हमारा फैमिली है, एंड फैमिली में जब हम बात करते हैं तो वी डोंट हैव दैट हेजिटेशन। घर में कभी हम लोग हेजिटेशन नहीं रखते। सो वही जो है हम लोग मूड यहाँ पे बनाने का कोशिश करते हैं, और इसीलिए वी गिव, है ना, हम लोग बहुत से जो जूनियर डिवोटीज हैं, दे आल्सो कम एंड दे मेक एन अटेम्प्ट। हम लोगों का आइडिया यही है कि हर किसी को हम अच्छे से इसमें इन्वॉल्व कर सके, उनका भी अपना डेवलपमेंट हो। वी इंक्लूड मेनी जो रिसेंटली इनिशिएटेड है। तो वी आर डूइंग दैट। इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू, प्रभुपाद जी का जो आर्मी है, प्रीचिंग का जो फौज है, उसको बढ़ाना है हम लोगों को। तो वी आर डूइंग दैट। सो कीप कनेक्टेड प्रभु, एंड थिंक it's my second spiritual family, and stay connected. Thank you Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. ओके, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश प्रभु जी का, सूरत माधव प्रभु जी का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।